Hello, dear friends. How are you? I'm Dr. Mukesh Parik, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In this short video, I'm going to enlighten you related to the translation of Bible and certain terminology related to Bible. You should know first of all that why this video is going to be important for you, because these questions have already come in the exam. So first of all, you should know that the Bible was first written in Hebrew, Aramaic, and Greek languages. Then it was translated according to the time, and the first translation was, though from Hebrew to Greek was the first translation, but that is very least important for us. For us, Latin translation, that is called Vulgate, is important. It was translated by Saint Jerome. So this is your first information. Then first information is the meaning of Bible and written in how many languages. Then second is Vulgate, translation by Saint Jerome. Then William Tyndale, that was the early modern English translation of Bible. This question appeared in exam. Then John Wycliffe, before or around the time of Chaucer, it was the first complete English translation from Latin. The followers of Wycliffe are called Lollards. That question was also there. So I have made a separate video on that. If anybody demands or need that video, they can ask me separately or can write in the comment section. I'll send them. Then we have Martin Luther. Martin Luther actually translated Bible into German, and he was the first one who brought up kind of Protestantism, because earlier the things were Catholic and they believed that those translation, because Latin was also the language of the educated. So these kind of translations were not available to the common people. And Wycliffe's Bible was also not very accurate Bible, because English language was still in the uh, in the transition phase. It was still getting its foot. So Martin Luther is important, as you know. And then Miles Coverdale, that was the person who gave us the first printed English Bible. So that question becomes important. Then we should also know that John Calvin, one who propounded the theory of Puritanism, he translated the Bible, and it is called Geneva Bible. It was the Bible which was taken with them, the pilgrims in the Mayflower ship. They took it to America. जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, वो कुछ ना करें. They just write the things down and can search them. And you can ask me in the comment section also. मैं उसको और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा. क्योंकि जॉन कैल्विन की जो बुक है, बाइबल ट्रांसलेशन है, जिसको जिनेवा बाइबल बोलते हैं, उसने प्यूरिटनिज्म फैलाया. और प्यूरिटनिज्म का मतलब होता है किंग को नहीं माना, आर्ट को नहीं माना. ये लोग जो बढ़ गए इस बाइबल को मानने वाले, तो उसमें फिर एक खास किस्म से राजा के खिलाफ हो गए. तो ये इंग्लैंड के अंदर जो सिविल वॉर का जो सारा नाटक है, वो इस बाइबल के ऊपर टिका हुआ है. और इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. इफ यू वांट टू नो मोर, आई विल मेक अ वीडियो. फिर उसके बाद में बहुत सारी बाइबल्स और भी हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन हाँ, इतना है कि दैट रियली डिस्टर्ब्ड द होल सिनारियो. सो देन जेम्स फर्स्ट, व्हेन ही came on throne in 1611, he collected 47 priests, educated priests, and then he collected all these Bibles and tried to give us a complete Bible, which is called the Authorized Version or King James Version. अब यहां से आपको कुछ और चीजें बताता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन क्या क्या प्रॉब्लम आई. एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में एपोक्रिफा एक वर्ड है. एपोक्रिफा का मतलब होता है कि बाइबल में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ये लोग हटाते गए. एपोक्रिफा का मतलब होता है थिंग्स विच दे डोंट कंसिडर रिलीजियस टू बी एडेड इनटू द बाइबल. तो एपोक्रिफा का क्वेश्चन आ जाता है. फिर इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, हेरोइंग ऑफ द हेल क्या है. बिकॉज क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन के बाद में कुछ सेंट्स ने लिखा है कि क्राइस्ट हेल में गए और वहां पे सोल्स को रिडीम किया और वापस आए. बट ये तो बहुत बुरा हो जाएगा कि क्राइस्ट कैसे हेल में जा सकते हैं. तो उन्होंने उसको हेरोइंग ऑफ द हेल कहा और इसको भी एपोक्रिफा माना. तो एपोक्रिफा से एक वर्ड आ गया आजकल इंग्लिश में, दैट एपोक्रिफल वी कॉल इट ब्लास्फेमस, समथिंग सैक्रिलीजियस अगेंस्ट रिलीजन. ठीक है, लेक्चर समझ में आ रहा है.
फिर हमें पता होना चाहिए कि इसके अलावा एक ही बाइबल आ गई और एक शी, क्योंकि ट्रांसलेशन में रुथ नाम का एक चैप्टर है। अब रुथ जो एक कैरेक्टर है उसको कुछ ट्रांसलेटर्स ने ही माना, तो उस प्रिंटिंग में आपको रुथ ही लगेगा, तो उसको ही बाइबल कह दिया। और कुछ में ट्रांसलेटर्स ने उसको शी कहा है, तो वो शी बाइबल बन गई। सो सपोज देयर कम्स अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ही बाइबल और शी बाइबल, तो उसमें पेट्रियार्की भी आ गई कि किसी ने रुथ को मेल माना, किसी ने फीमेल माना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन बनता है। एक विकेट बाइबल भी आई थी 1600 शायद 1500 समथिंग के अंदर, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही है। आप मुझे डेट लिख के बताना कि ये विकेट बाइबल का डेट क्या है। इसमें क्या है कि 10 कमांडमेंट्स होती हैं हमारे क्रिश्चियनिटी में। हमारी क्रिश्चियनिटी का मतलब है सारे धर्म लगभग सारी दुनिया के ही हैं। तो उसमें एक आता है कि भाई दाउ शैल्ट नॉट कमिट एडल्ट्री। 10 कमांडमेंट्स अगर आपको आती है तो आप मुझे लिख करके बताएं, कमेंट सेक्शन में बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप लिख सकते हो। एक सभी स्टूडेंट जो देखेंगे एक कमांडमेंट लिख दो कि जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें एक कमांडमेंट है कि भाई तुम एडल्ट्री नहीं करोगे। क्राइस्ट ने कहा है कि तुम किसी शादी के बाहर कोई संबंध नहीं बनाओगे, तो उसमें नॉट को हटा दिया गलती से, हट गया, बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया, द प्रिंटर्स वर पनिश्ड। तो उसको फिर, लेकिन वो बाइबल तो बाइबल है, वो पहुंच गई लोगों के पास में, एंड यू कैन फाइंड स्टिल देयर कैन बी इन सर्टेन लाइब्रेरीज दैट वर्जन इज अवेलेबल। तो उसको विकेट बाइबल बोलते हैं, क्योंकि अगर वो बाइबल कोई पढ़ेगा तो वो कहेगा भगवान खुद कह रहे हैं कि एडल्ट्री करो, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो। ठीक है। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो इट यूज्ड टू कम इन द नॉवेल्स हियर एंड देयर, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड। देन आई कंसीडर्ड एनसाइक्लोपीडिया, कंसल्टेड एनसाइक्लोपीडिया, जिसको कैटेकिज्म बोलते हैं। कैटेकिज्म का मतलब होता है छोटे बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू बाइबल की टीचिंग्स देना। जैसे हमारे यहाँ पे अगर रामायण सिखाई जाए, राम कौन थे भाई, ये थे दशरथ के कितने पुत्र थे, कैकेयी कौन से नंबर की पत्नी थी, शूर्पणखा कौन थी, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आप अगर मान लीजिए किसी को अपने ग्रंथ सिखाओ, तो बाइबल को अगर हम क्वेश्चन आंसर से सिखाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटेकिज्म। इसका भी क्वेश्चन आता है। फिर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि गिडियंस बाइबल क्या होती है। गिडियंस बाइबल बहुत फेमस है क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। पता है हर होटल के अंदर ये बाइबल्स मतलब पेश की गई। तो एक बार मैं अपने मार्गरेट लॉरेंस में मेरी पीएचडी है, तो एक जगह पर या 2-3 जगह पर बार बार कि होटल की ड्रॉर में दैट बाइबल वाज देयर, इन द होटल्स ड्रॉर दैट बाइबल वाज देयर। तो आई वाज सरप्राइज कि उसमें गिडियन गिडियन बार बार आ रहा है। आई सर्च्ड एंड आई फाउंड, फिर उसका रिसर्च किया तो पता चला कि गिडियंस बाइबल वाज कभी लोगों का, जैसे अब अपन हर होटल में गीता रखने लग जाए, या जैसे ये कौन से संप्रदाय के लोग हैं जो गीता सड़क पर बेचते रहते हैं, मैं नाम भूल गया, इस्कॉन वाले। तो और मान लीजिए हर जगह पर गीता रखी जाए और गीता को लोग पढ़ने लगे, तो एक मैसेज फैल सकता है भाई कृष्ण क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो गिडियन बाइबल हमें पता होना चाहिए। फिर हमें यूकरिस्ट और ट्रांससब्सटेंशिएशन का मतलब पता होना चाहिए। यूकैरिस्ट एंड ट्रांससब्सटेंशिएशन, ये दो टर्म्स हैं। यूकरिस्ट का मतलब होता है कि जो क्राइस्ट थे उन्होंने मरने से पहले बहुत बार अपने सरमन्स में कहा था कि तुम मेरा मांस खाओगे, मेरा खून पियोगे। तो जब उनको सूली पे चढ़ाया गया तो क्योंकि जो पाप इन्होंने किया है बाइबल के अनुसार, जो ओरिजिनल सिन है, कार्डिनल सिन जिसको बोलते हैं, उससे मुक्ति का एक ही उपाय है कि क्राइस्ट के खून को ये लोग चखें। तो बाइबल के अनुसार ये चर्च में बैंक्वेट नाम की जगह पर, यानी कि एक खाने की एक सेरेमनी करते हैं जिसमें ब्रेड को वाइन में डुबो करके प्रसाद के रूप में देते हैं और वो एक बाइबल का मंत्र पढ़ते हैं। तो ये मान लेते हैं उस वक्त के इस वक्त ये कन्वर्ट हो गया है ब्रेड और वाइन ब्लड में। ठीक है। तो उस सेरेमनी को ये लोग ट्रांससब्सटेंशिएशन बोलते हैं। और यूकरिस्ट का मतलब है एग्जैक्टली क्राइस्ट के प्राण या ताकत उस ब्रेड और वाइन में आ जाना। ठीक है। फिर इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए बाइबल को लेकर के। जैसे फर्स्ट लाइन का बाइबल का क्वेश्चन आया हुआ है कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ठीक है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया, चर्च ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश हो गया, कैथोलिक्स को काफी मारा गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक बाइबल कैथोलिक्स की चलती थी जो अलेक्जेंडर पोप पढ़ते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप एक कैथोलिक थे और उन्होंने रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा की अलमारी में जो बाइबल दिखाई है, उसका नाम नहीं दिखाया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उस पर क्वेश्चन पूछा गया है
कि वो कौन सी बाइबल हो सकती है। आपको मालूम है कि वो कैथोलिक लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो किंग जेम्स वर्जन नहीं हो सकता, वो कोई भी प्रोटेस्टेंट बाइबल नहीं हो सकती। तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो लंबा हो गया है, आपको वीडियो कैसा लगा, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।